सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ता है, ये हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। हम इस समय टंगडार सेक्टर में हैं और सामने जो आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना का आखिरी पोस्ट है और नीचे जो है वो जीरो लाइन का इलाका है, यानी इसी इलाके के साथ में एलओसी है और एलओसी के पार पाकिस्तान और पाकिस्तानी नियंत्रण वाला कश्मीर। यहाँ पे ऊंचे पहाड़, घने जंगलों के साथ साथ मौसम एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर 5 मिनट में यहाँ पे मौसम बदलता है। थोड़ी देर पहले जो अच्छी खासी धूप इस इलाके में थी, अब बादलों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कई पहाड़ी चोटियों को वो अपनी चपेट में ले गए, उनमें विजिबिलिटी जीरो कर देता है। खासतौर पर इन इलाकों में ही घुसपैठ करने वाले मिलिटेंट जो है वो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं, जिससे सुरक्षा बलों की जो तैयारी है उस पर मौसम का असर पड़े। क्योंकि जिस तरीके की थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस है या फिर ड्रोन कैमरा की मदद ली जाती है, इस मौसम में ड्रोन और थर्मल इमेजिंग को ऑपरेट करना नामुमकिन सा हो जाता है। और ठीक इसी चीज़ का फ़ायदा जो है डोडा, किश्तवाड़ और कोकरनाग, अनंतनाग में हुए मुठभेड़ों के दौरान मिलिटेंट्स ने उठाया था। यानी पहाड़ में मौसम ख़राब हो गया, बादल छा गए, विजिबिलिटी कम हो गई और जो नज़र से देखा जा सकता है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसके चलते ही जो है मिलिटेंट उसका फ़ायदा उठाकर ना सिर्फ घुसपैठ कर रहे हैं बल्कि एक अच्छे खासे इलाके में वो ऑपरेट करने में कामयाब हुए हैं। इसी से निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों की भी तैयारियां बढ़ गई हैं और किस तरीके से इसको विफल किया जाए उसकी तैयारी भी की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती इसमें सबसे बड़ा कदम है और इसीलिए आने वाले दिनों में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है वो हिंटरलैंड में की जाएगी, ताकि जो मिलिटेंट घुसपैठ करके कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। यही प्राथमिकता इस समय सुरक्षा बलों की है। So we are very close to the line of control, and you take care of all the medical emergencies which are very close to the line of control, especially with the civilians, as well as if there is any casualty with the Indian Army soldiers also. How is the preparedness if we talk about this medical room at the line of control? I'm Captain Abhishek. I'm Regimental Medical Officer, 7th Rashtriya Rifles Battalion, Punjab Regiment. This you can see is our medical inspection room. And we are equipped with the latest medical equipments and advanced trauma kits. Me and my team, we are responsible for the health of every soldier deployed with us along the LC. And we ensure this by conducting regular medical checkups, which includes weekly twice blood pressure monitoring, annual medical examination, and induction medicals. As we are along the LC and high altitude area also, this requires significant tolerance towards psychological stress. So we also conduct the interviews and psychological assessment as well as counseling. We also train our manpower to so that any casualty can receive medical aid at ground zero. Battlefield nursing assistant cadre and combat survival skill cadre, hygiene and sanitation cadre, malaria cadre, basic life support cadre are some of the many training activities we conduct over here. Also, we provide medical assistance to the civilian population residing nearby under Operation Sadbhavna. We regularly conduct medical camps and veterinary camps so that we can provide basic health services and free medications to the underserved population and their livestock. We, as an LC battalion, we are always on toes for any medical emergency that can happen. So this place is high altitude. It's about 10,000 feet above the sea level. So the oxygen is one of the issues that I'm sure the Jawans are facing. So once they're posted to areas like these, which are extremely high, are they given special training before coming here to acclimatize themselves to less oxygen and other things as well? Our soldiers are fully trained already. We do induction stepwise. Like at low altitude, we make them stay for 7 days.
then at higher height for 7 days, so they can acclimatize to the situation better. So yes, that. So whenever there is a ceasefire violation or an infiltration bid, and if at all a soldier gets injured in that action, how quick is the response of your team to reach the spot and bring them out of that situation? As I said, every post has a battlefield nursing assistant. He's a infantry soldier trained for basic medical care. He's trained for bleeding management. He's trained for trauma management, basically. And also, we get a call that injury has happened, and then we also moved from here to the location where it happened, so that there can be minimum time lapse between the patient and the best medical care he can get. So talking about civilians, this place also gets covered in complete snow during the winter. Yes. It's extremely difficult for the civilians during that time to go to a hospital. And we've seen Indian Army evacuating those civilians during the winter, during those snowfalls, especially the pregnant women. How do you deal with those situations, and how are civilians helped? Actually, this area is basically connected to the mainland by only a single road. So during winters, it gets covered with snow and the movement totally restricts. So for movement of patients, the only possible way is HEPTA evacuation. So Thank you. हम एलओसी पर इस समय हैं और सर्वेलेंस रूम में हैं, और यहाँ पे वो जवान हैं जो सरहद पर हमेशा 24 घंटे नजर रखते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं उस पे सीमा पर लगे हुए जो कैमराज हैं, कैमराज की मदद से एलओसी पर नजर रखी जाती है। आप देख सकते हैं कि अगर इस स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे सीमा पर लगे हुए कटीली बाड़ है, उस पे लगे हुए कैमरा की मदद से उस पर नजर रखी जाती है और वो लगातार जो है उसकी मूवमेंट भी हो सकती है। इसी तरीके से पूरे एलओसी के इस सेक्टर में देखें तो नजर रखी जाती है। कहीं पे सिविलियन काम कर रहे हैं तो वो भी दिख रहा है, बाढ़ काम हो रहा है वो भी दिख रहा है। और खास तौर पर देखें तो ऐसे इलाके में जहां पे जवान पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, जवानों पर भी यहां से नजर रखी जाती है। लाइव फीड के जरिए उनके ऑपरेशंस पर भी नजर रखी जाती है। यहां से सिर्फ नजर नहीं रखी जाती, जैसे ही कहीं पे कुछ हलचल देखी जाती है, एक कम्युनिकेशन सेंटर भी यहाँ पे लगाया गया है। यानी जैसे ही कहीं पे हलचल हुई, सीधे जो कंट्रोल रूम के जरिए जवानों तक वो खबर पहुंच जाती है और तुरंत ही सर्च पार्टीज निकल जाती है। हमारे साथ मेजर अरविंद हैं यहाँ पे। अरविंद जी, ये जो कंट्रोल सेंटर है, क्या सिर्फ ये सर्वेलेंस है या फिर एक एक्टिव सेंटर है जहां से ऑपरेट भी किया जा सकता है ऑपरेशन को? इसको एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सेंटर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, सर्वेलेंस के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन को भी इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। क्योंकि जितनी भी सर्वेलेंस डिवाइसेस मेरे आगे लगी हुई है उनका तो फीड मैं 24/7 यहाँ से मॉनिटर करता ही हूँ, और कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने पे तुरंत मेरा कम्युनिकेशन सेंटर मेरे अगल बगल के पोस्टों को भी और अगल बगल के कंपनी लोकेशंस को भी अलर्ट कर देते हैं, जिसमें क्या है कि मेरे जो जवान है वो अलर्ट हो जाते हैं, वो स्टैंड टू पे हो जाता है, और मेरे जो सर्च पार्टी जो होती है वो एक्टिव हो जाता है, मेरे क्यूआरटी जो है वो एक्टिव हो जाता है, ताकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट पड़ गया ऑन द स्पॉट, मतलब तुरंत वो एक्शन पे निकल गए। जो कैमराज यहाँ पे लगे हैं, क्योंकि हमने देखा मौसम कितनी जल्दी यहाँ पे खराब हो गया, तो ऐसी सूरत में या रात के समय जब घुसपैठ की कोशिश होती है तो क्या उस समय भी ऑपरेट कर पाते हैं? जितने भी कैमरास हमने इसमें लगा रखे ये सारे नाइट इनेबल्ड कैमरास भी है, और इनके मौसम खराब होने पे सिर्फ कैमरास पे नहीं, हम इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है क्वाडकॉप्टर्स, यूएवीज, आरपीएवीज, और उसके अलावा हमने जितने भी थर्मल इमेजरी इक्विपमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को भी हमने सेंट्रली इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इनकेस रात के टाइम पे मौसम खराब होने की वजह से नॉर्मल कैमरा अगर डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट लेकिन मेरा थर्मल इमेजर इक्विपमेंट जिसकी फीड यहाँ आते हैं उसी से मैं उसको डिटेक्ट कर पाऊंगा। तो मतलब 24/7 एक नहीं तो दूसरी तरीके से पूरे बॉर्डर को हम सर्वेलेंस पे रखते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से बॉर्डर्स को सिक्योर करने में कितनी मदद मिली है, कितना आसान हो गया है? टेक्नोलॉजी का मतलब
इंडियन आर्मी वैसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो जितने भी हम ये जो डिवाइसेस आपको दिख रहा है ये सारे हमने रिसेंटली इंडेक्ट किए हैं, जिसमें ये हमें एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे हमें काम आ रहा है, क्योंकि मेरा जवान 24 घंटे एक ही लोकेशन में खड़े होके एनिमी को देख नहीं पाते, उनको अपना पेट्रोलिंग भी करना होता है, सेंद्री ड्यूटी भी करना होता है, उनका अपना बाकी पर्सनल मेंटेनेंस भी करना होता है। तो उस तौर पे हम एक भी जगह मतलब इवन 1 मीटर का जगह भी हम खाली छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने इन डिवाइसेस को लगा रखा है जिसमें 24 घंटे यहाँ पे बैठ के यहाँ पे वर्चुअली वी आर मतलब हम उनके ऊपर नजर रखा हुआ है, और सेंट्री पोस्ट में जो खड़ा हुआ मेरा सेंद्री है वो फिजिकली वहां पे उनके ऊपर नजर रखा हुआ है। तो हमारा ये सारे सर्वेलेंस डिवाइसेस को मतलब क्या बोलते हैं, इनमें से कट करके कोई अगर ऊपर आना नामुमकिन ही है। यानी आप कहना है कि जो घुसपैठ यहाँ से पहले बहुत ज्यादा होती है उसको कट करने में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा मदद, उससे जवानों का बार कम हो गया है और वो अन्य कामों में अब करते हैं। तो सर्दियों के दिनों में कितना मुश्किल हो जाता है ये चीज ऑपरेट करना? एक्चुअली सर्दियों के टाइम पे ये हमें और काम आ जाता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जब बर्फ गिर जाता है, जिस लोकेशन में हम हैं यहाँ पे 20 से 25 फीट के आसपास बर्फ गिर जाता है, उस टाइम पे फिजिकली एक जगह पे जाके चेक करना मेरे जवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उस लोकेशंस पे मेरा कैमराज, ये जो कैमराज हो गए, जो क्वाडकॉप्टर्स हो गए, ये जहां जहां पे मेरे जवान को पहुंचने में मुश्किल हो जाता है वहां पे कैमरास और ये इनके आंखें पहुंचा देते हैं, और हम वहां पे भी सर्वेलेंस रखते हैं, बर्फ में भी, ताकि बर्फ में जनरली एवेलांचे प्रॉन एरिया है जहां पे हम अभी है, तो उसके चक्कर में मुझे जवानों को मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है। तो बट लेकिन जहां पे मेरे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के हिसाब से तो मतलब वी आर वेरी स्ट्रांग, मतलब जहां पे भी ये कैमरा लगा हुआ है वहां से हम 24 घंटे एनिमी के वो नजर रख सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी अब भारतीय सेना के लिए एक अतिरिक्त जवान के तौर पर काम कर रहा है। हाँ जी, श्योर, एक फोर्स मल्टीप्लायर है प्रॉपर टाइप। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है सरहदों को सिक्योर करने में, और फोर्स मल्टीप्लायर बन के सामने आ रहा है। यानी जहां पे इंसानी सोच खत्म हो जाती है, जहां पे इंसानी क्षमता खत्म हो जाती है, वहां पे अब टेक्नोलॉजी की मदद से सरहदों को सिक्योर किया जा रहा है। हम इस समय सर्वेलेंस रूम में हैं और यहाँ पे ना सिर्फ अपने इलाके पे नजर रखी जा सकती है, बल्कि जो एनिमी के पोस्ट हैं वहां तक इन कैमरा की मदद से नजर रखी जा सकती है। एक ऑपरेटर है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बोलेंगे? सिपाही बैराराम। सिपाही बैराराम जी, आप बोलेंगे कि यहाँ से आप जो पाकिस्तानी पोस्ट है क्या उन पे भी नजर रख पा रहे हैं? बिल्कुल, हम 100% उस पर नजर रख पा रहे हैं। आज जैसे हमने ये देखा पोस्ट नंबर 5 के पास हमें एक सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन फाउंड हुआ है, जिसमें एक जेसीपी, 6 सिविल ड्रेस में बंदे और 2 खाकी ड्रेस में बंदे फाइंड आउट हुआ है। वो अपने सुपीरियर को बताते हैं और इससे आगे जो कार्रवाई उनके वो बताते हैं वो हम करते हैं। यानी ये जो जेसीबी काम कर रहा है, अगर हम देख रहे हैं, हाँ, ये पाकिस्तानी साइड में काम कर बिल्कुल। तो जब आपने ये मॉनिटर किया तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने अपने सबसे पहले सुपीरियर को बताया कि हमारे पोस्ट नंबर 5 के सामने एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है। तो उन्होंने डायरेक्ट पहले आके वीडियो देखा और उन्होंने उस पोस्ट के बंदों को इन्फो किया कि आपके सामने ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आप अपने इक्विपमेंट को और जो वहाँ की मैन पावर है उनको रेडी रहने के लिए बोला है। और उनकी प्रत्येक एक्टिविटी पे वहाँ पे कितने बंदे आए, कितने सिविल ड्रेस में थे, कितने खाकी ड्रेस में थे, कितना काम किया, कब से लेके कब तक शुरू हुए, और उनकी अदर एक्टिविटीज और क्या थी। ऐसा नहीं हो कहीं उनकी आड़ में वो बंदे हमारी तरफ पास कर दे, हमें उस पर भी नजर बनाए रखनी होती है। यानी हो सकता है कि सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में घुसपैठ भी। हाँ, वही तो, हम जैसे ये 6 बंदे हैं, हमें इन 6 पे नजर रख रहे हैं। ये 6 बंदे वापस भी जाने चाहिए काम करके। ऐसा नहीं है कि 5 वापस चले गए, एक हमारे अंदर एंट्री हो गए। हमें लास्ट मोमेंट तक इस ऑब्जर्वेशन पे नजर बनाए रखनी है। जी, आप देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर यहाँ से दिखाए तो थर्मल जो कैमराज हैं रात के समय किस तरीके से काम करते हैं वो इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो ब्लैक एज यानी हथियारों के साथ अगर जा रहे हैं इंसान जो रात के अंधेरे में, तो उन पे कैसे नजर रखी जाती है इन कैमराज की मदद से, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। हालांकि जो जवान दिख रहे हैं ये भारतीय सेना के ही जवान हैं, अपने ही जवान हैं, लेकिन इसी तरीके से इन सर्वेलेंस कैमरास की मदद से दिन रात जो है नजर रखी जा सकती है
किसी भी तरह की हलचल में, चाहे वो सरहद पार होने वाली सिविलियन मूवमेंट हो या सेना की मूवमेंट। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से वो काम हो रहा है जो इंसानी तौर पर करना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करने से फोर्स के लिए कितनी मदद मिलती है ये यहाँ पे आके पता चलता है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, LOC, टंगडार सेक्टर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.